I'll be telling you about the panelists. We have Dr. Priyanshu Mathur, pediatrician, SMS Medical College, Jaipur. Dr. Shikha Garg, developmental pediatrician, Babylon's Newton Institute. Dr. Deepak Pancholi, senior occupational therapist. Dr. Surbhi Mathur, consultant psychiatrist at SDMH. Dr. Sunil Agarwal, pediatrician, Cradle Children Hospital, Jaipur. We now bring together an esteemed panel of medical and mental health experts who have dedicated their life to nurturing and safeguarding childhood. In an age where children face rising mental health concerns, overstimulation, and unprecedented challenges, it becomes crucial to understand the holistic nature of child well being. Moderating this discussion, we have Ms. Brahmi Chalani, psychologist and camp coordinator at Act to Action, whose work with children speaks volumes about care, consistency, and commitment. Please join me in welcoming our experts with a sincere appreciation. Hello everyone. Hello ma'am. Hello sir. I hope you are doing fine. Yes. Alright, so often, I would like to start this with a scenario. अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा सुबह उठते ही फ़ोन ले रहा है हाथ में and on the other hand the parents are worried. खाना हम फ़ोन के बिना नहीं खाएंगे, चीज़ों को देख के ही खाएंगे, हमें स्क्रीन चाहिए ही चाहिए. So all of this has become so regular and so much more in this fast-paced world. It is so important to talk about the causes, the reasons, and also the ways कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या steps ले सकते हैं to combat this. Because as a psychologist as well, and also as a human being, we know that often these things contribute to immunity causes also, concerns also. एंड हमारे लाइफस्टाइल में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है एंड दैट इज़ वाई वी वेलकम आर डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स हु विल हेल्प अस रियलाइज कि व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर द रीजंस एंड क्या हम कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू एक्चुअली वर्क ऑन दिस. So I have a few questions lined up for each person first. So let's cater to that and उसी से हम अपना introduction complete कर लेंगे and then we can go on to a general discussion about everything. So my first question is to Dr. Priyanshu. Since you are a professor in pediatric medicine, right? So my question is कि what's that one lifestyle change that you have seen कि last 10 years में एक ऐसा lifestyle change जो हमने देखा है among people, among kids regarding the screen time? If you can put some light. Thank you very much for the question. सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमने ऑब्जर्व किया है लाइफ स्टाइल चेंजेस में, वो डेफिनेटली ये है कि जो पहले लोग मोर ऑफ ए सोशल लाइफ जो जीते थे, जो फैमिली सेंटर्ड जो अप्रोच थी या फैमिली सेंटर्ड केयर्स होती थी, वो अब थोड़ी सी कम हो गई है न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से. नाउ द बेबीज़ आर मोर टुवर्ड्स द इंटरनेट टूल्स और ऑन स्क्रीन. सो ये एक मेजर चेंज है जो हमने देखा हुआ है. इसी की वजह से जो डेटा कहता है कि जो अटेंशन स्पैन है सबका वो कम हो गया है. जो अटेंशन स्पैन किसी भी अडल्ट का जो 2000 में 12 सेकेंड हुआ करता था, वो अटेंशन स्पैन कम होकर अब एवरेज अटेंशन 8.25 सेकेंड आ गया है. सो दैट्स ए मेजर चेंज वी हैव सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स. इवन विद किड्स ऑल्सो द अटेंशन स्पैन इज डिक्रीजिंग. Absolutely. Even I have had, read some research papers where it is actually discussed also. And आप लोगों पे अगर कोई point of view add करना है, you can, if you want to. Yes, add to Priyanshu sir. So it is not only about kids and the attention span, even the parents and the grandparents are all 3 generations are hooked to screen now. So true. So that's the major change in the social milieu I think which has happened. I agree and I guess आज का time without our phones possible ही नहीं हो पा रहा है for some reason. I mean we all need phones to call someone, to text, even to right now actually see the screen to ask questions. So actually it is so common कि हमें phones चाहिए ही. We cannot live our life without phones and probably that is a very big reason for our screen time. Okay. Moving on, I have the second question to Shikha ma'am itself. What's a sign parents often miss when their child is struggling to focus?
because your work is towards developmental behavioral pediatrics. So what's that one sign जो हम अक्सर parents miss कर देते हैं when our child is struggling with focus? So every child who is struggling with anything, not only focus, he or she shows subtle behavioral changes in his general life, which we often miss. छोटे छोटे जो behavior clues होते हैं, some attention seeking या हल्का सा irritability या anxiety of not performing, there are subtle signs which are there in the starting which we often miss. We often place it that the child is not into the activity or not into the thing which we want him or her to do, and that is something we miss before we जब बहुत grades गिरते हैं या बहुत ज़्यादा कहीं learning में issues आते हैं, that is the only time we are focusing on ki why the child is not having focus or attention. But I think the subtle behavioral changes which might occur way before the learning or the changes in the learning has happened should be looked into. So ma'am, any certain changes that you would want to mention actually जिसके लिए हमें look out करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? So sleep disturbance हो सकता है. The child remains more anxious. The child doesn't want to do. He just keeps on skipping here and there. He just started probably avoiding the thing. All these small subtle changes, you should look at why the child is doing that. Is it that practically the child don't want to do, or the child is having difficulty focusing into that activity? Absolutely, and great insights. Now my next question is to Deepak sir. From your perspective, कितना important है movement in actually supporting attention and overall brain development? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, the stage is yours. Hi everyone. Hi. Hello. Hello. देखिए, सॉरी मैम, प्लीज सॉरी ना, यहाँ पे इतने लोगों ने मेरे हाई का जवाब दिया. शी इज अंग्रेज इन हर मोबाइल, तो उनको पता ही नहीं है मैंने क्या बोला. मैंने हाई किया, हेलो किया, क्या किया, वेव किया, उनको पता ही नहीं. मैम आपको पता है मैंने क्या किया? तो यहाँ फेल हो जाता. बच्चे ही नहीं, एडल्ट भी, पेरेंट्स भी, जैसे मैंने बोला 3 जनरेशन इसमें अफेक्ट है. तो इसलिए अब जब आप किसी चीज़ में एंगेज हैं तो आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता. तो ये इसीलिए अफेक्ट हो रहा है कि मैं ऑटिज्म एक्सपर्ट हूँ, तो आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. तो आप लोगों को भी पता होगा कि ऑटिज्म क्या होता है, या आपके घर में होगा या नियर बाई होगा, आपके कॉलोनी में होगा कोई बच्चा, तो आपने देखा होगा उसको खाना खिलाते हैं, जैसे मैम ने बोला खाना खिलाते हैं मोबाइल से. सर ये खाता ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो नहीं खाए या नहीं खाए, पेरेंट्स का टाइम बचना चाहिए. होता है ना, नॉर्मल बच्चों के साथ भी होता है. सब टाइम बचाने के लिए सब जल्दी से खिला दो, बच्चे को स्क्रीन दे दो, उसके बाद में उसको कुछ भी खिलाओ, उसको पता ही नहीं, टेस्ट डेवलप ही नहीं होता. बस वो मुँह चल रहा है, मम्मा के हाथ से मुँह में जा रहा है, मुँह चल रहा है, टेस्ट डेवलप ही नहीं होता उसका. फिर हमारे पास केस आते हैं, सर ये कुछ खाता ही नहीं है, सेलेक्टेड फूड खाता है. फिर बिना मोबाइल के अगर उसको आप फूड दोगे तो वो फिर उसका सेलेक्टेड हो जाएगा, फिर उसको टेस्ट डेवलप होगा, फिर वो उसको चूज करेगा कि मेरे को ये खाना है या नहीं खाना है. तो इसलिए मोबाइल दीजिए, लेकिन एक लिमिट के साथ में. आज के टाइम में तो पेरेंट्स दोनों जॉब में रहते हैं, मोस्ट ऑफ मेड के साथ रहते हैं, तो टीवी मोबाइल, पेरेंट्स भी, मदर भी आ जाती है. तो मैंने तो ये भी देखा है 2-2 फ़ोन होते हैं आजकल सबके पास. एक में मदर रहती है, एक में फादर रहते हैं, एक में बच्चा रहता है, तीनों एक साथ बैठे रहते हैं, तीनों मोबाइल पे रहते हैं. तो यही नहीं, सोशलाइजेशन ही अपने घर में भी पेरेंट्स के साथ में बच्चों की बॉन्डिंग कम हो रही है, सोशलाइजेशन पूरा हो रहा है उनके साथ. तो इसलिए थोड़ा सा अपने को ये चीज़ कम करनी है, लिमिट से करनी है, स्पेशली फॉर खाना खाते टाइम तो बिल्कुल नहीं. थैंक यू. Thank you, I agree. अक्सर हम कहते हैं हम फ़ोन छीन लेते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट छीनना, इट्स अबाउट देना ही लिमिट में है ना. आई गेस दैट इज़ ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने मेरी लिस्ट में भी लिखा था, बट सीन्स यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए. तो लिमिटेड की डेफिनेशन क्या है?
एक्चुअली मैम लिमिटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि टाइम 30 मिनट्स 40 मिनट्स इनफ 24 आवर्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स इनफ है। अगर 3 घंटे 4 घंटे बच्चा मोबाइल पे देख रहा है, आप भी अगर रेगुलर आप 1 घंटा 1.5 घंटा मोबाइल पे रहिए, थैंक यू यार, परेशान। I agree. Yes, yes. So there are recommendations. So age wise recommendations है. So जो हाँ first important है first 18 months of life. So there should be no screen exposure for first 18 months of life except video calls. Sometimes you can show on the video calls. Second, between 18 months to 2 years. So 18 months to 2 years you can only show highly educational material videos, highly educational videos with good content. And 2 years to 5 years the screen time is, because there is some advantages of screen time also, so it's not always bad. So between 2 years to 5 years you can show screen for less than 1 hour, but the content which the baby is watching, that should be regulated by parents, और parents के supervision में होना चाहिए, and parents should explain वो जो video देख रहा है that should be explained, and it should be highly educational video. Then after 5 years of age, so the permitted level of screen time is not, it should never be more than 2 hours per day. उस 2 hours में जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें you can add recreational programs, few of the recreational program, but mainly focus on the highly educational programs. So there are advantages and disadvantages, so there are recommendations that you should not cross that limit. Okay. Absolutely. And yes. Yes, very true, Pranshu sir. And just one point, between 18 months to 3 years, the screen time, it should not be mobile. The child should not have an access where he or she can change the screen or can change the thing. Since you talked about attention and focus, that is the first point. एक second ये पसंद नहीं आया, scrolled. Second time पसंद नहीं आया, scrolled. And most of the time children, even for us, the 10 seconds video, earlier there were videos like some storytelling, कुछ कहानियाँ चल रही होती थी वहाँ पे, वो सब खत्म हो गया है. Anyway, screen is bad, but if you are giving the mobile to the child with an easy access, mobile बच्चा देख रहा है, नहीं पसंद आ रहा, उसने change किया, नहीं पसंद आ रहा, they have a visual memory, so they know the icons, they will be able to press it. Even an 18-month-old, उनको फोटो देख के पता लगता है कि अच्छा मुझे ये देखना है और अब मुझे ये नहीं देखना है, और वो बोर हो जाता है. That is where less attention and less focus comes. So very truly agree with Dr. Pranshu, but in fact the screen should not be mobile at all. So one more important point that is very important for all the families, कि जो games हैं, जो games बच्चे खेलते हैं, that should be avoided, because games में क्या होता है कि they release lot of adrenaline and steroids, because जब stress, क्योंकि जैसे for example racing है, car race का गेम है, तो उसमें क्या होता है कि जीतने के लिए वो स्ट्रेस में जाते हैं, मोमेंट्री स्ट्रेस. तो जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से उनके स्टीरॉइड्स रिलीज होते हैं बॉडी में, एड्रेनालिन रिलीज होता है, दैट लीड्स टू डिक्रीज इन इम्यूनिटी इन लॉन्ग टर्म. सो इट शुड बी अवॉइडेड, गेम शुड बी अवॉइडेड. Okay. इंटरनेट गेम्स. So it should be more like physical games होने चाहिए. So I usually ask my children कि आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है? लूडो. कैसे खेलूँगा? हाँ मोबाइल दो. Even the Ludo, even the common household games are now in mobile. Exactly. Even I had a nephew, nieces. They are like कि बुआ मासी हमें ना गेम खेलना है, लूडो खेलता है, चलो सारे बैठते हैं. I was like okay, bring लूडो. And then they were like कि नहीं, फ़ोन है ना मैम फ़ोन में डाउनलोड करो आप. So it is so common कि हमारे जो गेम्स है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं. Yes. One thing I want to add, like अभी जो जितना भी डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स ऑल गोइंग, दे आर all are forward looking marketings. Like whenever you see short span videos, like you are just seeing, leaning forward and seeing it very nicely, so your chest is also not open and you're not getting enough oxygen. And in long videos like in YouTube or where there are educational videos, just you sit, relax, and then you see. So you are getting the things, you are getting concentrating on the things. In reels you are not concentrating, you are just moving very fast because your oxygen level is less and mind is devoid of oxygen. So I think if the child should consume, he may consume some educational videos that are on YouTube for longer videos instead of short videos.
So true, and even if we look at the audience also, अभी भी सब back seated है, कोई भी front seated नहीं है. So it is a very good example for you all to see as well, कि जब हम कुछ actually serious discussions करते हैं. Can be used as monitoring also. If child is seeing something very close, it means he will get anxious and everything like that. He must do some activities which are a bit relaxed for him. So just you ask the first question that what are the early signs? It can be an early sign of, you can see the babies doing like that only when they have food also, they are very close to it and have food Yes. like that. So that can be a close sign that you can monitor. It is an objective basically. Yes, that's true, and I guess everyone has got some insights also कि क्या triggers हो सकते हैं, हम किस तरीके से उसको identify भी कर सकते हैं when it comes to actually noticing the onset of things, onset of concerns, and it's so important, I feel like. Moving on, my next question is to Surbhi ma'am. What is that one shift you wish कि modern parents में आता, that you know in the way how they emotionally engage with their kids? Because एक काफ़ी बड़ा shift and lag I guess we can see, because probably as I said कि nuclear families हो गई हैं, so less communication is there. So any shift that you have seen कि जिस तरीके से you know their parents engage with them, there is a huge shift somewhere? Thank you for the question. Shift, I'll say, is, see, time obviously is one of the issues that I think parents today have, because if both of you are working, you have very limited time with your child. But then that has to be quality time. Not thinking कि 2 घंटे बच्चे के साथ रह लिए, 4 घंटे बच्चे के साथ रह लिए. आप 2 घंटे रहिए, पर उस 2 घंटे में आप कर क्या रहे हैं बच्चे के साथ, that becomes more important. Like अभी it is all about screen. So बच्चे को screen देखना है या उसको आदत पड़ी क्यों है, because you are modeling that behavior. He or she has seen that since like they have started watching you. कि मम्मी क्या कर रही हैं, खाना खा रही है, मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, पापा क्या कर रहे हैं, वॉशरूम भी गए हैं, मोबाइल लेके गए हैं. So they are modeling these behaviors only, right? So when we talk about emotional connect, अगर आप भी मोबाइल पे ही हो, बच्चा खेल रहा है, आप अपने मोबाइल पे हो कि तुम खेलो, I am watching you, I am sitting with you, then that connect is not there. So we talk about quality time. एंड उसमें यू हैव टू एंगेज विद द बेबी कि हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं. एंड वन मोर थिंग आई हैव नोटिस दीज डेज इज कि पेरेंट्स आर गोइंग ऑल आउट, क्योंकि अब बहुत कुछ है. When we were growing up, we did not have so many things. Extra curricular के नाम पे I have done singing classes या फिर वो dance या फिर instruments. Like you know, you learn something. आज के ज़माने में you ask children what they are doing. I don't know, they are doing कुछ coding कर रहे हैं, कुछ Lego खेल रहे हैं. There are a lot of options, but you have to see what your child wants to do. Absolutely. A lot of parents just enroll them. बच्चे को बैडमिंटन में डाल दिया, बच्चे को स्विमिंग में डाल दिया, बच्चे को हमने इसमें भी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया. मैंने बच्चे को क्या करना है, बच्चा कह रहा है मेरे को नहीं जाना. So that doesn't make sense. So you have to understand what the child wants to do and then model him in that कि okay मेरा बच्चा एक चीज़ करता है पर वो अच्छे से कर रहा है, and you help him get ahead in that definitely. Absolutely. क्योंकि I think अब it's not the time of only we talk about curriculum and education like कि theory. There are a lot of alternatives and avenues जो बच्चे कर रहे हैं and they are doing very good. But we as parents sometimes feel कि नहीं पढ़ाई तो करी नहीं, 10th के बाद क्या, 12th के बाद क्या. आपका बच्चा नेशनल लेवल पे बहुत कुछ कर सकता है. Let's try and shift our focus on that also. Absolutely. Okay, so yeah, that's what I feel, right? Perfect. So I will give an example जो मुझे बाद बहुत लेट पता चला. So वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएस में वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोफेशनल फील्ड देते हैं. तो वहाँ पे उन्होंने कुछ मॉडल्स बना रखे हैं जहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन है, जैसे जज है तो वो क्या काम करता है, डॉक्टर है वो क्या काम करता है, इंजीनियर है काम, चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, एडवोकेट क्या करता है. तो ये मॉडल्स बना रखे हैं. तो वो बच्चों को पेरेंट्स घुमाने के लिए ले जाते हैं और उनको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि अगर इफ़ यू विल बिकम ए जज तो तुम्हारा क्या रोल रहेगा, इफ़ यू बिकम ए एडवोकेट तो तुम्हारा क्या रोल रहेगा. तो वो प्रोफेशनल फील उनको अर्ली लाइफ से दी जाती है कि आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है. जैसे यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नैरो फोकस्ड जो कई बार पेरेंट्स के विज़न थोड़े से फोकस्ड रहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं तो बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है. तो वो वहाँ पर वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनको सब तरह का फील दें, क्योंकि हो सकता है कोई किसी प्रोफेशन में अच्छा हो, कोई किसी प्रोफेशन में अच्छा हो, कोई किसी प्रोफेशन में, किसी को इंटरेस्ट कहाँ डेवलप होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. बट जब फील ही नहीं है तो यू कैंट थिंक अबाउट दैट.
So, you mentioned two very important things, going all out. Like parents बहुत कुछ कर रहे हैं. So कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि parents बहुत कुछ की जगह बहुत ज़्यादा भी कर रहे हैं. So anyone want to put some light on that aspect कि sometimes हम करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं and that might impact kids. बेसिकली अभी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि फैमिली में एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं एंड ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर इज आफ्टर देम, फादर एंड मदर इज आफ्टर. उनको भूख नहीं लगती उससे पहले दे ऑफर समथिंग टू ईट. उसको कोई गेम की ज़रूरत नहीं है, दे ऑफर बिफोर ओनली. सो ही डजेंट फील कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, कि आप बोल दो कि यार आपके लिए क्या लाएं आज बर्थडे पे, तो सब चीज़ तो उसके पास पहले से ही होती है. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, दे आर नॉट सीइंग कि नीड क्या है. नहीं तो बच्चा क्या एक्सप्रेस करता है कि यार मुझे इस बर्थडे पे ये मिलेगी या ये मिलेगा. दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑलवेज व्हाट वी टीच एवरीवन कि ठीक है बच्चे को नीड तो होने दो. जैसे खाने के लिए भी हम बोलते हैं कि जस्ट गिव देम टाइम टू रेस्ट देयर स्टमक, कि अपने को तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो उसको आगे पास होने के लिए चाहिए उससे पहले. क्योंकि दिस इज साइकोलॉजिकल ओनली. आई थिंक व्हाट मैडम में एग्री कि मदर जो होती है जैसे इनिशियली बोलते हैं कि 2-2 घंटे में उसको फीड करो, 2-2, सो हैबिट बन जाता है. हर 2 घंटे में उसको आ जाता है कुछ करना है. देन सी स्टार्ट्स फीडिंग, दे कंटिन्यू इट्स हैपनिंग एट एंड. तो वो शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. इट्स अ हैबिट, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 1-2 months टू शिफ्ट एंड दिस कैन बी डन इंटेंशनली ओनली, कॉन्शियसली ओनली. अगर आप कॉन्शियस नहीं हो उसके बारे में तो आप शिफ्ट होते नहीं और वो चलते जाते एंड दैट मे इम्पैक्ट द चाइल्ड. कि उसको पता ही नहीं कि जूते पहनने तो कैसे पहनने, बिकॉज ही हैज़ नेवर वन, जूते कभी पहने ही नहीं है उसने, तो उसको कैसे आएगा. गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू लर्न. उनको छोड़ो थोड़ा लर्न करने की अपॉर्चुनिटी, तब वो सीखेंगे. वी आर नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटीज बेसिकली. एक लाइन जो मैंने सीखा कि है ना, एक्सेप्ट सम मिस्टेक्स. मतलब अगर कुछ लेवल ऑफ मिस्टेक्स हैं बच्चों की, दैट शुड बी एक्सेप्टेड. मतलब ऐसा नहीं है कि दे शुड बी परफेक्ट फ्रॉम डे वन. अगर हम ये एक्सेप्टेंस डेवलप कर लेंगे कि हाँ ये मेरा टॉलरेबल रेंज है, कि यहाँ तक की गलती अलाउड है, सो दैट कैन हेल्प किड्स. कुछ ज़्यादा के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी. सो बहुत सारे हमारी उम्र में, हमारे पेरेंट्स की उम्र में कोचिंग कितनी उम्र पे शुरू होती थी? You started tuitions at what age? Most of us have not taken questions. Exactly. And अब 9-10 जब कोई MBBS करना है या नीट देना है या whatever, आज के टाइम में ट्यूशन कितनी एज से स्टार्ट होती है? Any guesses from the audience? Nursery, yes. I agree. Nursery. We have to set goals. What are we trying to teach our kids? फिर एक पेरेंट डालता है, 2 पेरेंट डालता है, तीसरा चौथा पेरेंट वरीड हो जाता है पीयर प्रेशर में ना, मैंने अपने बच्चे को नहीं डाला, इसको पता नहीं लिखना आएगा या नहीं आएगा. Where are we going? मतलब हम क्या सिखाना चाह रहे हैं तीसरे या चौथे साल के बच्चे को थ्रू ट्यूशंस 1, 2, 3, 4 या लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन या सोशलाइजेशन. अगेन आगे हम यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने समर कैंप में यहाँ पे एनरोल कराया है? सो वी हैव दो थॉट प्रोसेस रहते हैं पेरेंट्स के मन में. एक तो कुछ स्किल सीखे एंड सेकेंडली कम से कम ये टीवी से तो दूर रहेगा. हु एग्री विद द फर्स्ट पार्ट, स्किल सीखे? ओके, अ लॉट. एंड कम से कम ये टीवी से तो दूर रहेगा? वेरी फ्यू. बट इन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मोस्टली स्किल तो सेकेंडरी है, कम से कम घर से बाहर निकलेगा, टीवी से तो दूर रहेगा. तो हम वो छुट्टियों में भी बहुत ज़्यादा पुश करते हैं. ऑल्दो 1 or 2 स्किल्स एक्स्ट्रा लर्निंग इज़ गुड, बट हम पुश कर रहे हैं. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेडिकल और नीट की और IIT की कोचिंग कितने साल पे अपन ने 10th क्लास में, आज की डेट में कितने साल से शुरू हो रही है? Agreed. 5, 6, 7. Class 6, all of you would agree. डमी स्कूल्स हमारे टाइम में कितने कॉमन थे? नॉट एट ऑल. वी वर गोइंग टिल 12th टू द स्कूल्स. एंड आज की डेट में आई रियली इतना सरप्राइजिंग होता है, मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिंग डमी स्कूल्स इन क्लास 11. सो हम कुछ ज़्यादा नहीं, हम बहुत कुछ ज़्यादा कर रहे हैं. एंड वी एज पेरेंट्स हैव टू थिंक एंड स्टॉप आवरसेल्व्स बैक. वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्व्स बैक, क्योंकि अगर 4 पेरेंट्स ने कराया, सारे पेरेंट्स दुखी है डमी स्कूल लेके, कोई भी खुश नहीं है डमी स्कूल लेके, बट वो लेफ्ट आउट फील करता है. तो हमें एज अ कम्युनिटी हमें देखना है कि हम क्या भेड़ चाल में घुस रहे हैं. 1 या 2 को कराने, तो हमें वी नीड टू हैव आवर ओन थॉट प्रोसेस. कहीं ना कहीं आई गेस. हाँ, यस, श्योर.
लाइक ये जो मैम ने बोला ये काफ़ी रिलेटिव है कि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है कि एवरीवन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए सब चीज़ चले। जैसे आई पास्ट बाउंड माई चाइल्डहुड इन काठमांडू नेपाल, तो वहाँ पर एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एवरीवन इज़ गोइंग टू स्कूल, सब नॉर्मल है। वैसे ही यहाँ पर कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है कि बच्चे पीयर प्रेशर में कि अब बच्चा खुद सोचता है कि यार मैं कुछ नहीं, सो दे हैव लेस कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग इमोशनल स्ट्रेस आल्सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। I saw it. My grandpa used to say, whenever I used to get exam में भी marks also, अगर मेरे half से भी ज़्यादा आते थे ना, my grandpa would be so happy कि oh my god 50% 60% wow, and outside in the world 95% does not matter. I mean 99 नहीं आए तब तक तो matter ही नहीं करता है. And in my home my grandpa would be like oh my god 70 80 85. So that is the case. Yes. मैम आज अगर हम देखें तो कोटा में इतने सुसाइड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? स्ट्रेस। Stress. आज से 20 साल पहले सुसाइड कौन करता था? जिसका दिल टूटता था। राइट, वही करते थे ना। आज जिसका दिल टूटता है वो ही नहीं करता। कभी देखा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया या उसके बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया तो वो फंदे से लटक गया? नहीं होता ना। आज कौन होता है? अभी सर 5th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड किया, 6th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड किया। 5th क्लास में बच्चा क्या समझ आती है उसको? कितना समझ आ जाता है कि मैं सुसाइड कर लूँ? किस वजह से सुसाइड कर रहा है वो? अपनी वजह से। उस पर लोड ही इतना ज़्यादा हो रहा है, उस पर प्रेशर ही इतना हो रहा है। देख उनका बच्चा देख, उन आंटी का बच्चा देख, उन अंकल का बच्चा देख, क्या कर रहा है तू यहाँ बैठ के? वो देख कितना पढ़ रहा है, वो देख कितना आगे कर रहा है, वो ये खेल खेल रहा है, वो ये कर रहा है। बच्चा स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है उसमें? हम ही तो डाल रहे हैं, बाहर से तो आ ही नहीं रहा। आज 1st क्लास के बच्चे को इतना भारी बैग दे दिया जाता है, बेचारे से चला नहीं जाता। वो उसकी पूरी स्पाइन फ्लेक्शन में हो जाती है, उसको पता ही नहीं हो रहा यार उसमें इतना वजन नहीं होता, उससे ज़्यादा तो उसके बैग में होता है। स्कूल की फीस, मैम मेरा 1st क्लास में बच्चा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। 30,000 रुपये फीस 1st क्लास में, कॉलेज में नहीं दी हमने 30,000 रुपये। मैंने कहा वाह क्या पढ़ा लोगे? पीटीएम में जाते हैं तो पेरेंट्स का यही होता है कि सर कोई कंप्लेंट। 4 साल के बच्चे की क्या कंप्लेंट बताऊं मैं? लेकिन पेरेंट्स बताते हैं सर ये ऐसे करता है, मैम ये ऐसे करता है। क्यों बतानी है? 4 साल के बच्चे खेलने कूदने की उम्र होती है। लेकिन हम रियल में एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सर, मेरे पास ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स खुद ये एक्सेप्ट करते हैं सर 2 साल हो गई सनलाइट दिखाए। अब आप सोचिए 2 साल हो गई सनलाइट देखे उस बच्चे को, क्या सीखेगा, क्या सोशलाइजेशन डेवलप होगा उसका? लेकिन है, बस है तो है। तो वो वर्कलोड कहाँ से प्रेशर उसके माइंड में कहाँ से प्रेशर डेवलप हो रहा है? अपनी साइड से ही हो रहा है। शर्मा जी के बच्चे से, वर्मा जी के बच्चे से कंपैरिजन के साथ में वर्कलोड स्टार्ट हो रहा है। शर्मा जी का उन अंकल का, फूफा जी का, मामा जी का बेटा देख, वो 90 आज जैसे सर ने बताया, मैम ने बताया 50% में, आज 99% उसमें भी खुश नहीं है। टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एक तो है कि दिमाग को प्रेजेंट में रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों को लर्निंग कराते टाइम आपको उनको इट्स लर्निंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट कि हम बस करिकुलम को पूरा कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं। लर्निंग की उसमें कंसेप्ट क्या था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है ना, गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करिकुलम शुड बी डायनामिक। सो इट शुड बी डायनामिक करिकुलम। जैसे आई विल गिव ए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जब हम लोग डॉक्टर बनते हैं तो हम लोग पूरी MBBS पढ़ते हैं और उसमें हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हमारे, फिर बाद में जब हम सुपर स्पेशलिटी करते हैं या स्पेशलिटी करते हैं तो वो उसमें से 75% ऑफ सब्जेक्ट हमारे कभी काम नहीं आते फ्यूचर में। और हम सिर्फ जैसे, बट ग्लोबल एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जिसको बनना है उसको सिर्फ न्यूरोलॉजी स्पेसिफिक पीडियाट्रिक्स और एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इंडियन करिकुलम इज स्टिल इट्स नॉट डायनामिक करिकुलम। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बुक आज छप गई वो ही अगले 7 साल 8 साल 10 साल तक चल रही है, उसके बाद करिकुलम रिवाइज हो रहे हैं। सो ये अपने कंट्रोल में नहीं है, बट वी शुड लुक फॉर अ
फॉर अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स जहाँ पे डायनामिक करिकुलम हो, कि वो लोग करिकुलम को समय के साथ में, जैसे अब AI आ गया है, सो अगर हम बुक देखें जो हमारी जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है उसमें ये सब चीज़ ऐड होने में टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर ये इन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं एज ए एक्स्ट्रा क्लासेस, नॉट एज ए करिकुलम. सो वो एक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि बच्चों का लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है कि जस्ट करिकुलम कंप्लीट करने से. और करिकुलम में अगर कुछ पार्ट छूट भी जाता है कि 3 चैप्टर छूट गए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हो सकता है वो उसके कभी लाइफ में काम नहीं आने थे, लेकिन अगर उसने लर्न किया है कंसेप्ट को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. That's very true. So we have had a lot of, हमने problems को बहुत ज़्यादा discuss कर लिया है. We have all highlighted different areas जो problems है या जो concerning factors है. Now we can, talk about the ways we can cope it all. Because कहीं ना कहीं I feel like parents को भी अपने problems या जो चीज़ें चल रही है, we know it. वी आर अवेयर कि हाँ ये प्रॉब्लम्स या ये कंसर्न्स है या मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, किस लिए नहीं कर पा रहा है, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं. एंड एज वी टॉक, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट वी गिव. सो व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस सम ऑफ द वेज हम ये टाइम को क्वालिटी टाइम कैसे बना सकते हैं. एनीवन? So, one question to the audience. How many of you play with your children? Actually play? Okay. क्या गेम खेलते हैं? क्रिकेट. Cricket, yes. हॉपस्कॉच. Hopscotch. यस सर. You go for a walk. Carom. Uno. Swimming. So, जब भी yes sir. बैडमिंटन. सो जब भी कोई पेरेंट हमारे पास आता है, माई वन ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्ले विद योर चाइल्ड. एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट नो एज अप्रोप्रिएट प्ले. हम एक छोटे बच्चे के साथ क्या खेल सकते हैं. हमने जैसा हमारे डिस्कशन में आया कि हम बहुत सारे गेम्स ला के दे दिए, हमने उसे बोला अब तुम खेल लो इससे. एंड नाउ वी वांट कि वो बच्चा स्क्रीन छोड़ दे, वेयर एज वी आर ऑन आवर लैपटॉप्स, और वो उन गेम्स के साथ खेले जो हमने ला के दिए हैं. So first, quality time, but we have to inculcate that play and quality time with the child since beginning. I agree. उनके साथ एज अप्रोप्रिएट प्ले जो शुरू से ही हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं कैसे, दैट विल नॉट ओनली इंक्लूड उनको इंक्विजिटिविटी डेवलप होगी, उनको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे किसी चीज़ के बारे में बताना है. दैट क्वालिटी टाइम यू कैन यूज़ थ्रू स्टोरी टाइम्स. की कोई अपने बच्चे को रात को स्टोरी सुनाते हैं? वी हैव फ्यू हैंड्स. यस. सो हमने तो सबने बचपन में स्टोरी सुन सुन के पैदा मतलब नॉट पैदा बड़े हुए हैं, राइट. सो इनफैक्ट अभिमन्यु तो पैदा होने से पहले ही सुन रहा था. बट story time is a good example, and we have to engage with our children right from the beginning. From the beginning we have to talk to them शुरू से ही, जब से पैदा हुआ है. and language and communication, वहाँ पे जब आपका बच्चा आगे बढ़ता है 3-4 years के एज में, we want कि बच्चा inquisitive रहे and आपके साथ questions पूछे rather than playing alone with his or her own toys. So that is one point we want to stress. प्लेइंग की जैसे मैम ने बात करी, तो वी टॉक अबाउट फिजिकल प्ले ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग. आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे टाइम में और आज के टाइम में फ़र्क है, चिल्ड्रन आर नॉट सेटअप और दे आर नॉट लर्निंग टू फेल. जब आप खेल नहीं रहे हो, यू आर नॉट गोइंग आउट, आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, कजन फ्रेंड्स डू एवर, आप हारते हो कि मेरे से शटल नहीं मारी गई या आई लॉस्ट पॉइंट्स, है ना. यू लर्न, ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, मैं सीख के आऊँगा, कल मैं जीतूँगा. एंड दैट इम्प्लीकेट्स इन करिकुलम ऑल्सो, स्टडीज़ ऑल्सो. स्कूल्स की जब हम बात कर रहे थे, तो दिस आई नो नाउ दैट इन आई थिंक 8th standard तक सर दे हैव मेड इट ग्रेड्स, दे डोंट गिव मार्क्स. Exactly, absolutely. सो ओके, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज अ गुड चेंज कि भाई बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना. पर उसी बच्चे को आप जब 9th 10th में अचानक से मार्क्स देंगे, बिकॉज अभी आई डोंट नो हाउ मच इज ए सर, 70 60 आई डोंट नो. Yeah, you don't fail also. So the child is not learning to deal with stress. फिर आप 8th 9th 10th में अचानक से उसको बोलते हो अच्छा अब सब्जेक्ट लेना है या पढ़ाई कर, अब परसेंटेज, अब नंबर.
और बच्चे को पता ही नहीं है, तो दे आर नॉट हैंडलिंग फेलियर. आई हैव सीन सो मेनी किड्स 10 years 11 years who are having एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस हो रहा है उनको. और है क्या स्ट्रेस आपकी लाइफ में 10-11-12 साल में, बट यू आर नॉट एबल टू कोप, क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं कि अच्छा हार सकते हैं. क्या हो गया, हार गए तो रेस में भागे थे, हार गए, हार सकते हो आप. वी आर नॉट ओके विद लूजिंग. सो चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग दैट, दे आर नॉट गोइंग आउट. हम फोन पे खेल रहे हैं, लूडो, रीस्टार्ट. इट्स नॉट एक्स्ट्रा लाइफ, यू कांट डू दैट. सो वो लर्निंग, आई थिंक एक इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि यू नीड टू फेल. ठीक है, आप हार गए, कोई बात नहीं, आप सेकंड आए, आप और मेहनत करो, आप आ जाओगे फर्स्ट अगली बार दौड़ के. तो वो जो लर्निंग होती है ना, आई थिंक विच वी यूज टू डू, हमने बाहर खूब खेला है, खूब गिरे हैं, खूब चोट खाई है, वो अब शायद थोड़ा कम हो गया है. आई थिंक यस, एंड वन ऑफ द रीजन आई फील इज सेफ्टी. एटलीस्ट आई थिंक Safety. So yes, so perfectly right. So we should teach our kids to become emotionally intelligent. Emotional stability and emotional intelligence is very very important. So उनको failures accept करना आना चाहिए. Second important है उनका हम attention span कैसे monitor कर सकते हैं. So that is very important. क्योंकि जब हमको बच्चे को book read करने के लिए देते हैं तो ऐसा देखा गया है जो attention span है हर एज मल्टीप्लाई बाय 2 to 3 होता है. जैसे अगर 7 साल का बच्चा है तो उसका attention span 14 to 21 minutes होना चाहिए. 10 साल का बच्चा कंटिन्यूसली, 10 साल का बच्चा उसका attention span 20 to 30 minutes होना चाहिए. 16 साल का है तो उसका 48 मिनट्स तक होना चाहिए. सो ये अटेंशन स्पैन जनरली तब आता है जब बच्चे या तो बुक पढ़ रहे हैं या वो किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं. सो ये हमें डेवलप करना चाहिए. सो जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, एक तो इम्पॉर्टेंट है उनको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना. वी शुड एक्सेप्ट सम डिग्री ऑफ फेलियर्स, कि अगर कुछ फेलियर है तो वो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए. कुछ मिस्टेक्स बच्चे की हमें एक्सेप्टेबल है. हमें उनका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करना है कि हाँ इतना होना चाहिए, तो हमें उसके लिए एक्सरसाइजेस करानी चाहिए कि इतना रहना चाहिए. इसके अलावा बाकी लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है तो जस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं, बट उसको हमें ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि बेटा ये कैसे रन होती है चीज़, या इसके अंदर ये गेम अगर हम उसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए वो फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेल रहा है या स्कूल में उसको फुटबॉल खिला रहे हैं, तो उसको सबसे पहले उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसमें ये टीम्स होती हैं, ये गोल होता है, ये वर्ड्स होते हैं. सो जब भी हम उसे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैदान में उतारते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी जो मुझे लगती है, बिकॉज आई विल गिव ए एग्जाम्पल. मैं 2018 में यूएस गया ट्रेनिंग के लिए, इनबॉर्न ऑफ मेटाबॉलिज्म IEM की ट्रेनिंग के लिए गया, मेटाबॉलिक. तो जब मेरी इनिशियली थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप 1 महीने तक पेशेंट नहीं देखोगे, आपको 1 महीने तक 34 ट्रेनिंग्स करनी. सो ट्रेनिंग्स क्या है, मैंने सोचा ट्रेनिंग्स तो उसमें था बैक सेफ्टी, फायर सेफ्टी, गन शॉट सेफ्टी, ये ट्रेनिंग्स हमें दी गई. पहले दिन इंट्रोड्यूस किया गया डिपार्टमेंट से कि डिपार्टमेंट कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने साल स्टार्ट हो गया, वो सब जब ओवरव्यू दिया तो मैं बेटर कर पाया. तो इसीलिए ये सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे लगता है इंडिया में लैक करता है, वो लैक करता है कि हम बच्चे को चलो कोई गेम खेलने के लिए हमने भेजा, चल क्रिकेट खेल, बट हम उसको पहले एक्सप्लेन नहीं करते, बैट बॉल पकड़ा देते हैं, डायरेक्टली बॉल डालते हैं. लेकिन आई थिंक कि पहले हमको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या स्टम्प्स होता है, कितने फिट जो रियल मैचेस होते हैं उसमें कितने फिट होता है. तो ये चीज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लैक करती है, वो मेरे को लगता है कि हमें पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए जब भी वो कोई काम कर रहा है. रिगार्डिंग ये प्लेइंग ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर एंड इन विच प्लेस यू आर लिविंग. जैसे नेपाल में क्या है कि 10th तक इट्स कंपलसरी टू हैव अ फिजिकल एजुकेशन. तो वहाँ एक छोटा सब्जेक्ट है, तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटी बुक होती है. तो उसमें हर जैसे फुटबॉल ग्राउंड है तो उसका साइज़ है, डी क्या होता है, ये अगर मैं खेलूँ नहीं खेलूँ, बट आई नो कि बास्केटबॉल के अंदर 3 पॉइंट्स कहाँ से मिलते हैं, 2 पॉइंट्स कहाँ से, पिवोटिंग क्या होता है, एक सिंगल एंड एग्जाम इज़ लाइक दैट ओनली. सो स्टूडेंट्स दे स्टडी इन दैट. और दूसरा उस कल्चर में कैसे इनकलकेट हुआ ये चीज़ कि यहाँ पर फादर या मदर जो है वो बच्चे के साथ एज ए कम्पिटिटिव नहीं खेलते हैं. दे प्ले कि हाँ ठीक है खेल रहे हैं, यू मस्ट बी कमिटेड. आप चेस खेल रहे हो तो यू ऑलवेज प्ले टू विन. फादर अगर हमेशा जीतने के लिए खेलेगा तो बच्चा हारना सीखेगा, एंड एक दिन ऐसा आएगा कि वो जीत जाएगा, एंड यू विल बी हैप्पी एंड ही विल बी ऑल्सो हैप्पी. ऐसे चाहे स्विमिंग है, व्हेन यू स्टार्ट यू हैव टू कि उसको रोज़ हराना है, देन ही लर्न्स टू कम्पीट एंड ही लर्न्स कम्पीटिंग. तो ये जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं, वाई स्कूल्स आर गुड एट हिल स्टेशंस. आप चाहे मसूरी चले जाओ, देहरादून चले जाओ, कहीं पर भी
because more than 50% of the time people are spending in extracurricular activities. Maybe it's father, it's mother, it's parents, anyone. So they are very competitive to their children. तो बच्चे तो उनको हरा ही नहीं पाते हैं. वो तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब भाग नहीं पाते, मसल कम हो जाते हैं, तब हराना स्टार्ट करते हैं. एंड देन इट रिवर्सेस. मैंने राजस्थान में क्या देखा, वी वांट देम टू प्ले बट वी आर नॉट प्लेइंग एक्चुअली विद देम. सो इट्स लैकिंग. सो आई थिंक वी शुड, अब लेके जाना स्विमिंग तो यू ऑल्सो गो विद देम. आप जाके बैठ जाओगे, दूसरा बच्चा स्विमिंग कर रहा होगा, इन दैट वे दे विल नॉट लर्न. तो ये अपन को इंक्लूड करना चाहिए. आई थिंक दैट व्हाट वी हैव टू टेक. That's great. Sir, you want to add something on it? मैं सब लोगों ने, सब एक्सपर्ट है, सब ने अपनी अपनी एडवाइस अपनी अपनी रखी है. मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको 1 घंटा आप टाइम दीजिए, उनके साथ बैठिए. वो अपनी, जब ये सब वही बातें हो रही हैं, हमारे टाइम में ऐसे, हमारे टाइम में ऐसे, दैट इज़ राइट. वो जब अपनी टाइम की स्टोरीज बताएंगे ना, तो अपन कुछ नहीं कर रहे उनके आगे, कुछ भी नहीं कर रहे. उनके साथ बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको बोलिए. ओके, जैसे मैम ने बोला कि स्टोरी कौन कौन सुनाता है, क्या बेनिफिट होता है. अगर आप अपने बच्चे को स्टोरी सुनाएंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा. कम्युनिकेशन, कनेक्शन, लैंग्वेज, लिसनिंग. इवन आपने देखा कभी बच्चे को आपने स्टोरी सुनाई, लास्ट नाइट स्टोरी सुनाई, तो उसके क्वेश्चंस डेवलप होते हैं. मम्मा कल आपने एक शेर और चूहे की कहानी सुनाई थी, उसमें फिर क्या हुआ था. चूहे ने नेट काट दिया, फिर वो शेर निकल गया, फिर उनकी फ्रेंडशिप हो गई, फिर क्या हुआ. क्वेश्चंस पुटअप होते हैं ना बच्चे के. आपकी स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन उसके क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं. दैट मीन्स कि वो रिकॉल कर रहा है उस चीज़ को, कल वाली चीज़ को, शेर और चूहे की कहानी को वो रिकॉल कर रहा है. वो आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. ये चीज़ स्क्रीन टाइम में, मोबाइल में या इंडोर गेम्स में ये चीज़ डेवलप नहीं होगी. जितना एक्सप्लोजर मिलेगा, जितना आउटडोर गेम्स फिजिकली, मेंटली कितना एक्सप्लोजर मिलेगा, कितना सेंसरी इनपुट्स मिलेंगे उसको जब वो ग्राउंड में खेलेगा. तो इसके लिए ज़रूरी है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंडोर की बजाय हम आउटडोर पे फोकस करें और मिनिमम स्क्रीन टाइम पे उनके फोकस करें. सर, I so agree, and I guess yes, you want to say something. Add on one tip for observation and attention. बहुत सारी बात हो रही है attention के लिए. So wherever you go, whatever you do, you go back and ask your child. आज आप गए थे, suppose we are sitting here. आज आप वहाँ गए थे, वहाँ पे आपके साइड में बगल वाले में कौन आंटी बैठी थी, या सामने कौन बैठा हुआ था, उन्होंने कौन सा ड्रेस पहना. Just 2 or 3 very simple questions according to the age. And even if the child doesn't pay attention at that time, कुछ दिनों बाद उसको लगेगा अच्छा मैं कुछ देख लेता हूँ, मम्मा कुछ पूछ सकती है या पापा कुछ पूछ सकते हैं. गोइंग टू मॉल, अच्छा वहाँ पे कौन सा मॉल, कौन सी ब्रांड देखी थी, क्या आप रिकॉल कर सकते हो, हमने कितनी शॉप्स देखी थी, शूज़ का कौन सा ब्रांड था. जस्ट लिटिल 2-3 क्वेश्चंस अबाउट वेर एवर यू आर गोइंग, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, लाइक एवरी डे. तो जब आप, तो बच्चा ऑब्जर्व करना शुरू करेगा अपने सराउंडिंग्स को, एंड देन मे बी मोर अटेंशन एंड मोर ऑब्जर्वेशन पावर विल डेवलप. I'll add one thing over here. One thing that I have done and I have had a change within me. Initially ना मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, and then I had a plan कि मैं जैसे ही रूम में एंटर करूँगी, the first thing I will do is notice 5 things around me, and that has changed a lot within me myself. I have become more observant कि अच्छा bottles कितनी पड़ी है, lights कितने लगे हुए, something. Because I used to ask this question to a lot of kids कि you know बताओ chairs कितनी है या कितने विंडोज़ थे उस रूम में, एंड रियलाइज्ड वी आर नॉट अटेंटिव, वी आर नॉट देयर, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि you know I should start it from myself itself. So this is I guess a request to all the parents to start observing. मतलब आप अपने right and left में देख लो कि कौन बैठा है, so that you also become more aware of the here and now, and then maybe when we actually practice something हम बता सकते हैं कि करो ये, इससे affect आएगा. So one thing, and one more thing that I guess I'll add on to sir as well, building foundation कहीं ना कहीं हमारे attention और focus पे भी effect लाता है. Can you just elaborate it a little bit? Yes.
didn't get the thought. Yeah, building foundation. So you know, one thought that came to my mind was कि जब हम सुन रहे होते हैं कि अच्छा a badminton ground should be of this much and fit, so हम भी उसमें concentrated रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा attention span भी increase होता है. Yeah, exactly. So that is really important. So एक और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर बच्चा कोई एक टास्क कर रहा है और उस टास्क के बाद उसने अगली टास्क को शुरू किया, तो ये देखा गया है कि उसको अगली टास्क पे कंसंट्रेट करने में लगभग 20 मिनट्स का टाइम लगता है. सो ये एक एवरेज टाइम देखा गया. तो इसलिए अगर आप बच्चे को किसी टास्क आपने असाइन की है और तो वो जब उस टास्क को कर रहा है तो लेट हिम कंप्लीट दैट टास्क फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट जो भी है, देन गिव द सेकंड टास्क. ऐसा नहीं कि आप उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया फिर थोड़ी देर में दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया. तो सिमिलरली कि अगर जब हम उसे एक्सप्लेन करें किसी चीज़ के बारे में, जैसे अगर हम लोग अभी उसको एक्सप्लेन करें कि हाउ द लाइक फ्रिज वर्क्स, हम उसके बारे में अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें वी शुड कंप्लीट दैट एंड देन वी शुड फोकस ऑन अदर थिंग, क्योंकि उससे बेटर लर्निंग होती है, उनके सारे क्वेश्चंस एक बार में कंप्लीट हो जाते हैं. सो दैट्स Yes, that's great. Now I guess Sunil sir का question pending था, so I'll ask that, and I guess that one question is directed to each one of you, and I would love to have your insights, and then we can take up questions from the audience as well. अगर किसी को कोई questions and कोई queries है, then you can ask. What's that one myth you would like to bust about how children actually build strong immunity, attention, like any one myth? So I think for children's for building immunity, तो अपन को क्या है कि एक तो उनको we have to give the exposure of चाहे डस्ट हो या और कोई चीज़ का, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ ही खिलानी है, बट एटलीस्ट क्योंकि कितने दिनों का अपन बोलते हैं तो वो क्या करते हैं दूसरे दिन से कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल. वी हैव टू टेल देम कि हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स क्या है, ये क्या है, हैंड वॉशिंग करना चाहिए, टीथ ब्रश करना चाहिए, जो बेसिक्स है जो कि डिजास्टर कर सकती है, उसके लिए तो अपन को उनको एजुकेट करना ही चाहिए बेबीज़ को. बट ऐसा नहीं कि पूरा ही हर जगह गए सैनिटाइज because the microflora which is available in the environment is also helpful in building the immunity. अब अपन देखते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो अपने इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरी जगह नहीं होती है, तो डेट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इम्यूनिटी ओनली. जो बच्चों का इम्यूनिटी बिल्डिंग का टाइम होता है इनिशियल 4 to 5 years. तो अपन देखते हैं कितने जने बोलते हैं कि सर ये तो हर महीने बीमार हो जाता है या हर 2 महीने में बीमार हो जाता है. लेट हिम गो आउटसाइड, लेट हिम प्ले, लेट हिम बी. यही तो इम्यूनिटी बिल्ड होता है. जैसे बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, बॉडी ने इम्यूनिटी बिल्ड यानी मेमोरी बिल्ड करी, देन फॉर द नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट गेट इल विद दैट सेम इलनेस. सो लेट देम गिव द एक्सपोजर इन लिमिटेड क्वान्टिटी, कि बहुत ज़्यादा भी ये नहीं कि अपन स्विमिंग पूल में डाल रहे हैं, जो छोटा सा पूल है उसके अंदर 50 बच्चे हैं. सो यू हैव टू सी द क्वालिटी, हाउ कैन यू गिव, सो इट हेल्प्स इन दैट. सेकेंड, इमोशनल हेल्थ इज ऑलवेज कि अपने बॉडी में कभी भी स्ट्रेस आता है या आता है, सो आवर बॉडी इज ऑलवेज रेडी टू फाइट और फ्लाई. वो भागने की कोशिश करती है या फाइट में. सो देयर आर ऑल हार्मोनल चेंजेस विच में मेक योर बॉडी एग्रेसिव, इट में मेक योर बॉडी डिप्रेसिव. तो अगर डिप्रेसिव तो इम्यूनिटी भी कम होगा, सब चीज़ कम होते जाएगा कि बॉडी बिकम्स लाइक दैट ओनली. सो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन बोथ दिस इमोशनल हेल्थ ऑल्सो एंड दिस गिविंग द एक्सपोजर्स. एंड लेट अपन क्या करते हैं कि आजकल चिल्ड्रन को अपन डिसाइड ही नहीं करने देते कोई भी चीज़. वी गिव आवर एडवाइस कि ऐसे कर लो वैसे कर लो. लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू. सो आई थिंक आई विल पेस्ट वन स्मॉल QR कोड की एक्टिव पेरेंटिंग के लिए आप कह सकते हो. उसमें कुछ स्टोरीज़ है, 10-12 स्टोरीज़ है. व्हेन यू विल रीड वेरी शॉर्ट स्टोरी, यू विल रीड इन हाफ एन आवर, तो आपको पता चलेगा हाउ कैन वी चेंज. तो आप हर चीज़ को कोशिश करके वो स्टोरीज़ के तरह अपने घर में चेंज ला सकते हैं. सो दैट हाउ यू कैन बिल्ड, हाउ कैन यू डिक्रीज स्क्रीन टाइम, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, हाउ कैन यू मेक द एक्टिविटीज फन. तो उन स्टोरीज से आपको पता चलेगा. दैट आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द सेशन. That's great. And since yes, you have something. So very well explained. I will just go to the basic concept. So immunity is of 3 types. First is innate immunity, second is acquired immunity, third is borrowed immunity. So जो फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी है वो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जो हमारी स्किन है, हमारी म्यूकोसा है, वो इनेट इम्यूनिटी है. तो एवरीबडी इज बॉर्न विद द इनेट इम्यून सिस्टम.
सेकेंड इज बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो सर ने बताया वो परफेक्ट बताया कि हमारे बच्चों को हमें एक परमिसिबल लिमिट के अंदर उनको हमें मिट्टी में भी खेलना और अलाउ करना चाहिए, क्योंकि रीज़न बीइंग कि देयर इज़ ए हाइपोथेसिस दैट इज़ हेल्थ हाइजीन हाइपोथेसिस और ओल्ड फ्रेंड्स हाइपोथेसिस। सो ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जब हम बच्चे थे तो हम लोग मिट्टी में खेले तो हमें वर्म एक्सपोजर भी हुआ, हमको बैक्टीरिया एक्सपोजर भी हुआ, जो कि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का एक्सपोजर था। तो और कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया का एक्सपोजर हुआ, तो उसकी वजह से हमारी मेमोरी डेवलप हुई, इम्यून मेमोरी डेवलप हुई, और वो हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। तो अगर बच्चे फर्स्ट फ्यू ईयर की लाइफ में अगर बार बार बीमार होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे लाइफ टाइम बीमार होंगे। अगर फर्स्ट फ्यू ईयर की लाइफ में बार बार बीमार हो रहे हैं तो उनके मेमोरी बी सेल्स बन जाती हैं शरीर में, जो उनको लॉन्ग टर्म सस्टेन इम्यूनिटी देती है। थर्ड इज बोरोड इम्यूनिटी। तो बोरोड इम्यूनिटी का मतलब होता है जैसे ब्रेस्ट मिल्क है, तो बच्चे की बॉडी उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही, बट वो जब ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो मदर की इम्यूनिटीज़ जो हैं वो उसके जीआई सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है। सो दैट इज़ बोरोड इम्यूनिटी। सो फॉर जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ एक्टिव, जो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज़ बाय एक्सपोजर्स। Okay. Since you talked about the myths, I'll just add on. कोई भी पिल्स, कोई भी गमीज, कोई भी मेडिसिन इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पे आप वो गमीज आते हैं, शुगर कोटेड गमीज बहुत सारे मार्केट में, दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। उसके लिए जैसे डॉक्टर सुनील सर ने बोला, पेंशु सर ने बोला, हमें ये सारी चीज़ें करनी है, प्लस अ वेरी हेल्दी डाइट। अपने बच्चे के डाइट में 5 कलर्स ऐड कीजिए एंड अ गुड स्लीप रूटीन। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द टाइम व्हेन द बॉडी इज़ रीजनरेटिंग इटसेल्फ। लेट सो के 1-2 बजे सो के टीवी दिखा के सुबह 6 बजे उठा के भाग के स्कूल छोड़ना नॉट गोइंग टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। Absolutely. We'll just take 2 questions from the audience to wrap up. If you have any questions, you may raise hand and we can just hear you out. Anyone? Develop more patience in How to develop more patience? If anyone can cater to how to develop more patience in kids. So, ma'am, what is the age of your child? teenagers. Huh? Teenagers. Teenagers. Okay. Adolescents. Okay. Adolescence is a real next level ball game. So मुझे लगा था आप छोटे बच्चों की. So first we have to set up the realistic goals. हमारा बच्चा कितना बड़ा है और हम कितना, जैसे यहाँ प्रियांशु सर ने मेंशन किया कि अटेंशन स्पैन, जैसे अब ये बच्चे उठ के चले गए, वी रियलाइज बहुत लंबा सेशन हो गया, अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है बच्चों का. नाउ इफ़ वी वांट कि अभी ये बच्चे यहाँ ही बैठे रहें पेशेंटली, then we have very unrealistic expectations from our children. So first of all, we should have realistic expectations from our children, and patience in which domains. आप बात करें, this is a very open-ended question, but कौन से डोमेन में आप पेशेंस की बात कर रहे हैं? Nature wise, these days kids are not prone to patience. बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं. Exactly. So raising resilient kids, हमारी बात वही हो रही थी कि हमने बचपन से ही how we are trying to inculcate the behaviors in children will be reflected upon our teenagers. छोटी छोटी बातों पे अगर फेलियर्स नहीं हुआ या हर चीज़ पहले ही मिल गई, सो सपोज जैसे एग्जांपल मिला यहाँ टॉक में कि हम बर्थडे पे पता ही नहीं होता क्या लेकर आना है, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ होता है. सो किड्स डोंट लुक फॉरवर्ड टू, दे आर नॉट अर्निंग देयर गिफ्ट्स, दे आर नॉट अर्निंग देयर प्राइजेस, दे आर ऑलरेडी देयर. बर्थडे पे 10 टॉयज़ और आ जाते हैं, उसको खोलना है कि उसको वापस आगे पास ऑन कर दे, वैसा डिस्कशन चल रहा होता है आज. किड्स हैव सो मच ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स. सो to develop patience, yes, there are certain points you can take. Teenagers are big children and you can talk to them regarding their mental upbringing or their EQ or their IQ, but this has to go from the beginning, where we are asking our children, we are teaching them how to be patient, right? So we have to not give them, say, एक्स्ट्रा गमीज दे दिए हमने, या आपको ठीक है आपको ये तभी मिलेगा जब आप ये काम करोगे. सो रीचिंग टुवर्ड्स देयर गोल्स, this has to develop from the beginning and not suddenly one night we want our teenager to be patient. That can't happen. That will not happen. देखिए मैम, ये पेशेंस वाला ना, मैंने जो अभी एक बुक है जो दे रहा हूँ उसके अंदर एक स्टोरी है, छोटी स्टोरी है. आई टेल यू द स्टोरी एंड देन आई थिंक इट मे हेल्प
in solving your question. कि आप है ना जैसे यू मेक अ फैमिली काउंसलर, यानी क्या होता है पर उनकी बात नहीं सुनते हैं बच्चों की, एडोलेसेंट की, वो बोल रहे हैं हाँ बोल रहे होंगे, आपकी वो नहीं सुन रहे, वो आपकी नहीं सुन रहे, इसलिए ये डेवलप हो रहा है। आप अगर वीकली वंस देखें तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको खुल के बताएं कि दीज आर माई प्रॉब्लम्स, और आपकी जो प्रॉब्लम्स लेट देम लिसन, एक्टिवली लिसन कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुना नहीं ना ध्यान दिया, क्या पता वो सही हो, क्या पता मैं ही गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ, दे विल एनालाइज इट। तो आप डिस्कस करो वीकली वंस कि आप डिनर पे बैठो, यू कैन डिस्कस कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, दे ऑन दैट डे ओनली दे विल डिस्कस द प्रॉब्लम, नॉट ऑन अदर डेज। सो आई थिंक दे मे डेवलप द पेशेंस एंड यू कैन ऑल्सो डेवलप द पेशेंस। ओके, सो आई विल ऐड सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ में है वो है कि प्रेजेंट में रहना, दिमाग को प्रेजेंट में रखना। ज़्यादातर अगर मान लीजिए पेरेंट्स ही पास्ट का सोच के डिप्रेस्ड होते हैं, फ्यूचर का सोच के एंशियस होते हैं, तो बच्चे भी वही ट्रेड डेवलप करते हैं, बिकॉज रोल मॉडलिंग इज़ देयर। सो बच्चे किसको देखते हैं? रोल मॉडल, पेरेंट्स को रोल मॉडल मानते हैं। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने दिमाग को प्रेजेंट में लाना है, वेदर यू डू मेडिटेशन और यू डू एक्सरसाइज और यू डू हीलिंग्स, एनीथिंग यू कैन डू, बट ब्रिंग योर माइंड इन प्रेजेंट, माइंड इज इन प्रेजेंट। सेकेंड एक टर्म है जो एक रीसेंट टर्म है, उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा एनवायरमेंटल, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम उसी तरह की बॉडी में प्रोटीन एक्सप्रेस करने लग जाते हैं और हम वैसे ही हो जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट वी शुड बिकम द रोल मॉडल फॉर अवर किड्स एंड वी शुड हैव अवर स्टेबिलिटी इन माइंड। Absolutely, and thank you so much for such wonderful insights and wisdom. And I guess we all have learned a lot from you. So thank you for being here. I'll just wrap it up in a few words कि हमने क्या क्या discuss किया है. We have discussed a lot of things, but majorly जो हमारा discussion है, that is based on how to enhance our attention, concentration, focus, and how to reduce the screen time, or maybe make the screen time effective in a way that can have a positive, good impact on our kids. So that is it, and thank you so much, doctors, once again for being here and sharing this wisdom with us. Thank you. Thank you, doctors, for offering us not just knowledge, but real world compassionate wisdom. Your presence here has enriched all of us and reaffirmed us that every child deserves to grow up with support, strength, and stability. Now I would like to invite Mr. Kritesh Agarwal, founder and CEO, and CEO to act for action for the vote of thanks. Thank you so much. I just first of all, thank you to you guys to be here. Have a big round of applause for yourself. You know, you guys are aware parents, so please have a big round of applause for all the aware parents. डॉक्टर्स की सेशन को सुनने आने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए कि मैं कुछ रिसीव करने आ रहा हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, या मैं अपनी प्रॉब्लम को पहले समझ पाया, राइट? सो फर्स्ट इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन ओनली वी कैन get the solution. So at least you guys have already addressed or got your problems. So good. So that first step is already achieved. So have a big round of applause again for yourself. And thank you to all the doctors जो हमारी problems जो कि बहुत ही simple दिखने वाली है लेकिन वो है बहुत serious, क्योंकि यहाँ जो parents बैठे हैं वो सब जो feel करते हैं वो हम पिछले 21 दिनों से कर रहे हैं. I hope you guys agree with that. And why Brahmi was hosting this session, because she was the one जो सारे volunteers से everyday feedback session receive कर रही थी, and then she was looking at it, right? So I believe still we love all the kids and we love all the kids. Thank you so much for giving this opportunity to us to share this wisdom, to get this panel for you here, to have all your children with us and having you all in RIC. Can't tell you कि मैं कितना खुश हूँ आप सबको ऐसे ऑडिटोरियम में देख करके. So thank you very much for that. Thank you so much. Now let's do the रिवायत जो हमारी है भारतीय संस्कृति की. तो मैं one by one डॉक्टर्स को आप सबकी तरफ से यहाँ पे गिफ्ट देता हूँ. I would request Poonam ma'am also please join me on the stage. She is the one जो हमारे साथ हमारी venue partners हैं. और team, can we have the mementos, भगवत गीता jars, candles and plants. सर हम लोग पेड़ नहीं देते हैं, वो फूल नहीं देते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि पेड़ आप लगाएं
तो ये पेड़ आपके लिए है। इसके अलावा जो ये कैंडल है, ये मैनिफेस्टेशन कैंडल है, आपने नीचे देखा होगा, तो ये आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा और हमारी टीम कृति आपके साथ कनेक्टेड है, आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांटेड टू डू दिस एक्टिविटी विथ यू। आई थिंक पंचोली सर के इवेंट में मैंने गेस्ट को दिया था, आप लोग बाकी रह गए थे। सो अब आप लोगों के लिए ये कलर्स आप चूज कर सकते हैं, आपका जो भी इमोशन अभी हो रहा है। हैप्पी, पिक एनी ग्रीन कलर, सो यू विल गेट द कृष्णा गाइडेंस। हैप्पी है या I am happy that everybody is happy. I think आप लोग भी choose करोगे तो green ही करोगे। दीपक सर कुछ और करेंगे, दीपक सर है इनको एंजाइटी भी हो सकती है बिकॉज नीचे ये पूरा पीस, सर पीस है नहीं सर इसके अंदर। अच्छा पीस है पिंक कलर से। हाँ आजकल दीपक सर बॉडी वगैरह बना रहे हैं ना, पीस से ज़्यादा मुझे लगता है उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कृतेश सर के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। कृतेश सर से अभी कुछ टाइम पहले ही मैं जुड़ा हूँ, आई थिंक अप्रैल, अप्रैल में 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे होता है, तो हमने एक छोटा सा इवेंट किया था, उसमें कृतेश सर हमारे साथ थे। तो मैं चाहूँगा कृतेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियाँ। इनकी वजह से आज हम लोग साथ में हैं, आप यहाँ बैठे हैं। इन्होंने 21 डेज किस तरीके से निकाले हैं मुझे पता है तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इनकी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। स्वीक, I really appreciate the concept कि जो आपका जो कंसेप्ट है दैट इज़ फैंटास्टिक, एक्ट टू एक्शन। जो समर स्कूल ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी आपकी एंड इट्स रियली अमेजिंग। मैंने अपनी बिटिया को 2 समर स्कूल में भेजा इन लास्ट 1 मंथ में। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, नहीं तो मैंने यहाँ पे भेजा होता। और उसको मैंने जहाँ भेजा, मैंने उसे भेजा एल्डरली केयर कैसी की जाए, उसकी एक वर्कशॉप थी 7 डेज़ की। स्कूल था जोधपुर, उसको अकेले जोधपुर भेजा विद वन ऑफ माई रिलेटिव। जब वो वापस आई है सो आई कैन फील द चेंज। उसमें चेंज ये है कि जो घर में मेरे पेरेंट्स हैं जो अभी थोड़े ओल्ड एज हैं, वो उनकी केयर वो खुद कर रही है, उनका बीपी नापना, उनका शुगर नापना, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग। और मुझे इन्फॉर्म कर रही है कि पापा अभी ये दादी अभी ठीक हैं, उनका बीपी नॉर्मल है। सो इट ब्रिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज। मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, नहीं तो मैंने उसको यहाँ भी भेजा होता। थैंक यू। Heartiest congratulations, Kritesh sir and the entire team of Act to Action. Wonderful concept. And my card here gives the gist of this entire talk. Stay in present. Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachan. Thanks to Sunil sir for connecting me to the entire panel. And Sunil sir के लिए मैं बोल देता हूँ, पहला जो हमारा Act to Action समर कैंप का फर्स्ट स्पॉन्सर क्रेडल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और सेकेंड और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट JCDC है। सो वी थैंक बोथ ऑफ देम टू हेल्प अस टू बी देयर। अब तो आज सब देख रहे हैं और इसके बाद तो सबने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं ना, पर वो जब ये सब नहीं था, सिर्फ सपनों में था या बातों में था, तब भी आप दोनों ने उस पर भरोसा रखा। और आप सब लोगों ने भरोसा रखा जब हम फ़ोन पे बोलते थे कि ये होगा, और आप लोगों ने माना हमारी बात। बहुत लोग नहीं माने जो नहीं है यहाँ पे, पर जो मान चुके हैं उन सभी लोगों के लिए एक बार वापस हटा लिया। इट्स ऑल्सो एक्सरसाइज है, डॉक्टर्स के साथ तो थोड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए सो लेट्स डू इट। तो ये गेस्ट के लिए मैं कुछ गिफ्ट्स हैं। लेट्स ब्राह्मी एंड पूनम मैम आप आइए, आप दीजिए मेरी तरफ से सभी लोगों को। मैं एक करके नेम बोलते जाता हूँ। आई विल बी हैप्पी टू अनाउंस द नेम्स। प्लीज आइए पूनम मैम। पूनम मैम इज फ्रॉम, इन्होंने 15 साल चाइना में स्पेंड किया। शिंजिया में थे? No, it was in Huai'an. It's close to Nanjing. परफेक्ट। एंड देन अभी उनका अच्छा बिजनेस वहाँ चल रहा है, लेकिन पर्सनली ये भी अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहते थे पर्सनली, इसलिए उन्होंने जगतपुरा में एक बड़ा सा एक सेंटर खोल दिया है, उसका नाम है रॉयल जयपुर स्किल अकेडमी। तो जगतपुरा में वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए बैडमिंटन होती है, डांस होती हैं। सो इस दौरान उनका खुद का ट्रैवल भी था, उनका हेल्थ इश्यूज भी आए, बट एवरीथिंग शी मैनेज्ड एंड सी टुडे दे आर विद अस। सो थैंक्स टू सच पार्टनर्स हु आर देयर एंड ऑलवेज रेडी विद अस। थैंक यू सो मच। Please, let's start with Dr. Priyanshu.
गया ना. हाँ मोदी जी है अभी क्या थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील सर. अच्छा उनका हमारे के लोग हैं बात पहले हम किसी को बोले आइए. Also, I invite you कि आप प्लीज बच्चों का शो अगर आपके थोड़ा टाइम लिख जाएगा मैम and I'm happy हमारे डॉक्टर ऐसे ओपनिंग ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं तो डॉक्टर से बहुत आपका गिफ्ट We have नन्हे कलाकार से प्रांजल भैया and रिद्धि, please come on the stage. Have a big round of applause. आप सबने नन्हे कलाकार इवेंट किस किसने अटेंड किया? आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे. वो तो आप तो ऑर्गेनाइजर्स टीम से हो, ऐसे नहीं उठा सकते आप. सो नन्हे कलाकार एक ऐसा इनिशिएटिव है. आप दोनों लॉयर्स हैं. आओ आओ प्रांजल भैया आप स्टेज पे आइए ना प्लीज. इट्स एन ऑनर फॉर अस. प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाइए क्योंकि आप अभी जानेंगे तो शायद तब बजाएंगे. राजस्थान में जो राइट टू एजुकेशन के लिए काम करने वाले लोग हैं और आरटीआई के लिए जो फाइट हमारे गवर्नमेंट में गवर्नमेंट से प्राइवेटली जो फाइट करके और बच्चों के लिए इतना अच्छा काम करने वाले, तो वो हमारे साथ हैं प्रांजल भैया. तो बार जोरदार तालियां हो जाए. लेजेंड बच्चों के साथ बहुत ही कमाल का ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो. इसी साल AU फाइनेंस की हेल्प से पूरे जयपुर में उन्होंने फ्री किट्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो मैं आपका गेस्ट ऑफ ऑनर तो हम आपके सेशन पे देते हैं, लेकिन प्लीज़ आप आइए, ग्रुप पिक्चर लेते हैं हम आपके साथ. सब आ जाइए आप लोग आगे. विल हैव अ ग्रुप पिक्चर. Dr. Kiran is here. Where is she? Please, ma'am, come on the stage. You want to say something? I just wanted to add that my child attended this event, and when I got to know through Instagram about Art to Action, I was trying her to attend it because I wanted to explore, as it was there in the session, that what is it which I should pursue for her. And thank you very much Art to Action to bring it together. Yeah. So much. Yeah. Will you join us? Please come on the stage, please. So thank you so much. Sharing this platform means a lot for us. All doctors are there, तो मुझे अपनी हेल्थ की चिंता तो नहीं है. Thank you. Hi everyone. Everyone, hi. आपको पता चल गया होगा आपको कौन से ऑडिटोरियम में जाना है. Thanks to RIC also. RIC legit supported us for this event. Thanks to sir जिन्होंने हमें बहुत support किया इसके लिए. And now we'll have a group picture with the kids. And आप सभी के लिए जो थिएटर शोज है, क्योंकि आप लोग नीचे एग्जीबिशन मिस ना करें, बच्चों के कैनवस मिस ना करें, उनकी मेंटल वेलबींग रिपोर्ट मिस ना करें, इसके लिए हमने सारे थिएटर एक्ट्स नीचे ट्रांसफर कर दिए हैं. क्या बोलते हैं एग्जीबिशन हॉल में. सो एग्जीबिशन हॉल 1 and 2 में रहेगा.
हमारे जितने पैनल्स हैं उसका लास्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन हम लोग दूसरे ऑडिटोरियम में करने वाले हैं. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू गाइज एट डाउनस्टेयर्स एंड द मोमेंट विल स्टार्ट द पैनल विल इन्फॉर्म यू, विल गिव यू द मैसेज सो यू गाइज कैन जॉइन इन द ऑडिटोरियम. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. I'm Dr. Kiran, she's my daughter Jiashna. We are happy that we attended Art to Action summer camp, and because I'm a pediatrician and a growth specialist, I would like you parents to give your message. The rule is 5, 2, 0, 1, which means 5 servings of fruits and vegetables per day, 2 hours of physical activity, 0 junk, and at least 1 hour of physical activity. That is the mantra for your child's good health and success. Thank you. And cheers to Art to Action.